ہوگا. شاید صاحب کوئی ایسی انڈیا میں بڑی یونیورسٹی ہوگی جہاں پہ الجامعۃ الاشرفیہ کا کوئی فارغ نہیں ہوگا. شاید کوئی اہل سنت والجماعت کا ادارہ ہوگا جہاں پہ الجامعۃ الاشرفیہ کا کوئی فارغ نہیں ہوگا. تو آپ کو ماننا پڑے گا جہاں جہاں حضور حافظ ملت کے در کے پروردہ موجود ہوں گے وہاں پر بالواسطہ بریلی کے امام احمد رضا کا علمی فیضان چمک رہا ہے. اس لیے آپ کو ماننا پڑے گا. آپ جب حضور حافظ ملت کے فیضان کو مانیں گے تو آپ کو اعلیٰ حضرت کے فیضان کو ماننا پڑے گا. اس لیے بخاری ماننے والوں کیسے کہتے ہو کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے علمی فیضان کو نہیں مانتے یا ان کے علم حدیث کو نہیں مانتے؟ تجھے یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت امام بخاری کو جو علمی فیضان پہنچا ہے یہ امام احمد ابن حنبل سے پہنچا ہے. ان کو علمی فیضان امام یوسف سے پہنچا ہے اور امام یوسف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد خاص ہیں. اب آپ ذرا سا سوچیں اور سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جو 1000 علماء کی مجلس بنائی ان میں اکثر ان کے شاگرد تھے جس میں 40 ایسے تھے جو مجتہد فی المسائل تھے. اب آپ مجتہد فی المسائل بھی سمجھئے یعنی وہ لوگ جو خود سے مسائل اخذ کرنا جانتے تھے ان کے لیے تقلید ضروری نہیں ہے. لیکن آج ہر انسان غیر مقلد بننے کے لیے تیار ہے. وہ 40 جو امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس میں تھے اور ان کے شاگرد تھے ان کے پاس اتنی صلاحیت تھی کہ انہیں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں تھی مگر سب کے سب امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد تھے. آج جو صحیح سے عربی پڑھنا نہیں جانتا وہ بھی غیر مقلد ہے. آج جو صحیح سے قرآن کی آیتیں پڑھنا نہیں جانتا یہ بھی غیر مقلد ہے. صاحب یاد رکھیے گا یہ ہاتھ جھاڑ دینا یہ غیر مقلد ہونے کی علامت نہیں ہے. غیر مقلد بننے کے لیے آپ کے پاس علم چاہیے, آپ کے پاس علمی کوالٹی چاہیے, آپ کے پاس اتنا علم ہو کہ آپ مجتہد فی المسائل بن سکے. صاحب یاد رکھیے گا یہ رفع یدین یہ امام شافعی نے کیا اور امام شافعی کے ماننے والے کرتے ہیں. تو آپ یاد رکھیں امام شافعی کہتے ہیں کہ دنیا والوں اس زمانے میں جو زمانہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے اس زمانے میں کسی مانے امام اعظم ابو حنیفہ سے زیادہ عقل مند ماں پیدا ہی نہیں کیا. زنا ہی نہیں. اس لیے یاد رکھیں صاحب علم کا غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب المتکبرین, بے شک اللہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اس لیے یاد رکھیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک اللہ کی پیروی کرو, رسول اللہ کی پیروی کرو, اولی الامر منکم اور اس کے بعد صاحب امر کی پیروی کرو. ظاہر سی بات ہے یہی وجہ ہے ہم لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ فکر تھی کہ صاحب آنے والا دور ایسا دور ہے جس دور میں ہو سکتا ہے لوگ مسائل اخذ نہیں کر پائے. اس لیے انہوں نے 1000 علماء کی ٹیم بنائی, 1000 علماء کی مجلس بنائی اور ایک ایک مسئلے پہ بحث و مباحثہ ہوتا. جو مسئلہ اتفاق رائے سے صاحب پاس کر دیا جاتا اسے کتاب میں لکھ دیا جاتا تھا. اور صاحب جس میں کوئی بات رہ جاتی یا کوئی صاحب موجود نہیں ہوتے یا کسی کا اختلاف ہوتا تو اس کے اختلاف کو بھی لکھ دیا جاتا. امام محمد کا اس مسئلے میں اختلاف ہے, امام یوسف کا اس مسئلے میں اختلاف ہے, امام اعظم کا نظریہ یہ ہے. اب آپ ذرا اس کا تصور کریں جیسے آج کچھ لوگ ہوا اور آندھی چلا رہے ہیں نا, اس زمانے میں بھی کچھ لوگ آندھی چلاتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ اپنی عقل سے فتوے دے دیتے ہیں, اپنی عقل سے مسائل بنا دیتے ہیں. اللہ اللہ یہ مسئلہ امام باقر کی بارگاہ میں پہنچا. یہ حضرت امام باقر کون ہے؟ امام حسین کے شہزادوں کے شہزادے ہیں. حضرت امام باقر سے ملاقات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی مدینہ شریف میں ہو گئی. حضرت امام باقر سے ملاقات جب ہوئی حضرت نے مصافحہ کیا. امام باقر نے کہا اچھا آپ ہی امام اعظم ہیں جو اپنی عقل سے فتوے دیتے ہیں؟ کہا حضور نہیں, میں تو فتوے قرآن سے دیتا ہوں, میں تو فتوے حدیث سے دیتا ہوں. کہا تو پھر بتاؤ. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا حضور پہلے میں 2 زانو ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ تو جاؤں. ادب دیکھیں کیا کہا, ادب.
दो जानों के सामने, सरकार की औलाद के सामने, नबी की आल के सामने, इमाम हुसैन के शहजादे के सामने हजरत इमाम बाकिर बैठे हैं और दो जानू होकर वक्त का इमाम बैठता है। अर्ज करते हैं नहीं हुजूर, मैंने आज तक कोई मामला खुद से नहीं तय किया, बल्कि हम पहले कुरान में तलाशते हैं, कुरान में न मिले तो हदीस मुस्तफा में तलाशते हैं, हदीस मुस्तफा और कुरान से हम न समझ सके तो सहाबा की अक़वाल में तलाशते हैं, सहाबा के अक़वाल के में हम तलाशते हैं और देखते हैं इसके बारे में अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा है, इसके बारे में हजरत उमर इब्न खत्ताब ने क्या कहा है, इसके बारे में सरकार मौलाए कायनात ने क्या कहा है, या इसके बारे में सहाबा ने अमल क्या किया है। अगर उसमें भी न मिले या ये सवाल बिल्कुल उसके बरखिलाफ हो तो हम फिर कयास करते हैं कि इस तरह का कोई मसला सहाबा के जमाने में हुआ था कि नहीं हुआ था, फिर हम उस पर कयास करते हुए फैसला लेते हैं। अब कहते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा, हुजूर आपसे मैं दो तीन सवाल करना चाहूंगा। उन तीन सवालों में एक सवाल ये है, कहते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा, हुजूर ये बताया जाए मर्द मजबूत है या औरत मजबूत है? इमाम बाकिर ने कहा मर्द मजबूत है, औरत कमजोर है। कहा हुजूर मर्द मजबूत है, औरत कमजोर है, मगर कुरान कहता है कि मर्द को 2 हिस्सा दिया जाए विरासत में और औरत को 1 हिस्सा दिया जाए, जबकि अक्ल ये कहती है जो कमजोर है उसे ज्यादा दिया जाए और जो मजबूत है उसे कम दिया जाए। हुजूर अगर मैं अक्ल से फैसला लेता तो फिर ये कहता कि औरत को 2 हिस्सा दिया जाए, मर्द को 1 हिस्सा दिया जाए, मगर जो मेरे नबी ने कहा है अबू हनीफा का उसी पे अमल है, अबू हनीफा उसी पे फतवा देता है। सरकार दूसरा सवाल मेरा ये है, ये बताया जाए नमाज अफजल है या रोजा अफजल है? कहा नमाज अफजल है। कहा हुजूर जब नमाज अफजल है तो औरत को जो एमसी या हैज की शक्ल में ब्लड आता है तो हुजूर जब रमजान में आए तो बाद रमजान रोजा रखने का हुक्म है, लेकिन जब और नमाज फर्ज है, लेकिन जितने महीने में आए नमाजें कज़ा हो जाए तो नमाज दोबारा पढ़ने का हुक्म नहीं है, जबकि नमाज रोजा से अफजल है। अगर मैं इस वजह से फतवा देता तो अक्ल से फतवा देता तो ये कहता कि नमाज जब रोजा से नमाज अफजल है तो नमाज जो ब्लड आने की वजह से न पढ़ सकी बाकी के बाद उनका पढ़ना जरूरी होगा। लेकिन हुजूर मैंने ये नहीं कहा, बल्कि मैं भी यही कहता हूँ कि जब मेरे नबी ने कह दिया है कि औरतों के माहवारी या में हैज में जो नमाजें छूट गई उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो जब नबी ने कह दिया तो अबू हनीफा भी उसी पे अमल करता है। हजरत इमाम बाकिर ने उन्हें उठाया, गले से लगाया, पेशानी को बोसा दिया और कहा बेशक ये सच है। नबी ने फरमाया कि कूफा में कुछ लोग ऐसे होंगे कि अगर इल्म औजे सरैया पर हो फिर भी वहां से खींच कर लाएंगे और इस उम्मत को उस इल्म के नूर से भर देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इमाम आज़म अबू हनीफा, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहिब क़िबला। अब एक बात याद रख लीजिए, पहले हदीसें थी मगर हदीसों का बाब नहीं था। बुखारी पढ़ने वालों कान खोलकर सुनो, तिरमिजी पढ़ने वालों कान खोलकर सुनो, नसई इब्ने माजा पढ़ने वालों कान खोलकर सुनो, और इतना सुनो तुझे सुनने की जरूरत है। जब बुखारी उठाओगे किताबुल ईमान पाओगे, किताबुल ईमान के बाद किताबुल तहारत पाओगे, किताबुल तहारत के बाद किताबुल सलात पाओगे, किताबुल सलात के बाद साहब तुम पढ़ते चले जाओ किताबुल निकाह, किताबुल तलाक, तुम साहब किताबुल उज़हिया, तुम जितने बाब पाओगे ना ये किसी और का देन नहीं है। अगर इस्लाम में सबसे पहले इस्लाम की तालीमात को बाबों की शक्ल में बांटकर जिसने आसान किया उसी आलिम रब्बानी को इमाम आज़म अबू हनीफा कहा। वाह
आलिम रब्बानी को इमाम आजम अबू हनीफा कहा जाता है। एक छोटी बात सुन लीजिए ताकि कम से कम मैं तो मौजू का हक थोड़ा सा अदा कर लूं और फिर जो दूसरा मौजू है ना, इम्तियाज सरमद साहब को मैं पढ़ता हूँ, है ना। इन्होंने एक बात सोशल मीडिया पर एक किताब की रहनुमाई की, इनका इंटरव्यू छपा था, तो मैंने भी सोचा कि चलिए जरा सा मलफूजाते महबूबे इलाही पढ़कर देखता हूँ, है ना। माशाल्लाह ये इनकी पसंदीदा किताब है। तसव्वुफ से मेरा भी बड़ा गहरा ताल्लुक है और मेरी पसंदीदा किताब का नाम तो काशिफतुल कुलूब है। मैं चाहे उसे जितनी बार पढ़ लूं, आप भी पढ़ा कीजिए। आज तो मुसलमानों की पोजीशन इतनी खराब है, मिलाद साल में 10 बार कराएगा, सुभान अल्लाह कराइए, 1 लाख खर्च करेगा, मगर घर में सरकार की सीरत की एक पतली किताब भी खरीद कर नहीं रखे। बोलिए गलत बोल रहा हूँ? रखे हैं, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। कम से कम 1000-2000 रुपए अपने घर में एक इस्लामिक लाइब्रेरी बनाइए और 2-4 किताबें जरूर रखिए जो जरूरी है। जैसे आप उन किताबों का नाम याद रखें साहब, जो आम लोग हैं, कम से कम कानून शरीयत दोनों चीज आपके घर में होनी चाहिए। उसके बाद साहब औरतों के लिए जन्नती जेवर अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी की होनी चाहिए। हुजूर सदुर शरिया की एक किताब है इस्लामी अखलाक व आदाब, आप उसे रखें। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी की सीरत मुस्तफा और कुरान को तर्जमे के साथ कंजुल ईमान अपने घरों में जरूर रखें। ये किताबें हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में भी दस्तयाब है, आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। आपकी बेटियां पढ़े, आपके बेटे पढ़े, आपके बच्चे पढ़े। जब आप पढ़ेंगे ना, कम से कम इस्लामी अखलाक व आदाब तो हर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत सदरी इजलास हजरत अल्लामा मुफ्ती अफजल हुसैन साहब किला नूरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती इरफान चिश्ती साहब किला, काजी शहर सीवान हजरत हाफिज अब्दुल वकील साहब मुबारकपुरी, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह तशरीफ रख के देख रहे हैं। अब हमारे बाजू और मजबूत हो गए। मुनाजिर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अफजल हुसैन साहब किबला नूरी, काजी सीवान हजरत अल्लामा मुफ्ती इरफान चिश्ती साहब किबला और शायर इस्लाम हजरत अलहाज हाफिज अब्दुल वकील साहब किबला, ये बुजुर्ग शख्सियतें तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह आप इन्हें देख रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा था छोटी सी लाइब्रेरी आपके यहाँ होनी चाहिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था इमाम आजम अबू हनीफा का एहसान इतना बड़ा कि उन 1000 आलिमों ने बैठकर उम्मते मुस्लिमा पे इतना बड़ा एहसान किया कि जितने मसाइल थे उन्हें निकाल कर इकट्ठा कर दिया ताकि बाद वालों को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े, पढ़ता चला जाए और अमल करता चला जाए। इतना बड़ा एहसान इमाम आजम अबू हनीफा ने किया है। ए बेटा बैठ जाओ ना, जाहिर सी बात है इस मोबाइल ने तो सबको डिप्रेशन में डाल दिया है, टेंशन में डाल दिया है ना। और तू भी आया इसी काम के लिए है, कैमरा ऑन है। अब साहब अब तो हकीकत ये है कि मीडिया वाले सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। इस मौलवी को अभी मीडिया की औकात का पता नहीं है ना, जाहिर सी बात है। अब इन्हें डांटिए तो भी तकलीफ, मना कीजिए तो भी तकलीफ। याद रखिएगा साहब, वक्त के हिसाब से, हालात के हिसाब से इंसान अपने मामलात को तय करे। याद रखिए हम इमाम आजम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी थे, आज भी है, मगर मुक़ल्लिद कुछ लोग और भी हैं जो इमाम आजम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं, मगर इमाम आजम अबू हनीफा वाला इश्क उनके पास नहीं है, इमाम आजम अबू हनीफा वाली मोहब्बत उनके पास नहीं है। साहब उनका पर्दा अगर किसी ने उनके चेहरे से निकाब उठाया तो उसी निकाब उठाने वालों को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। और जब हमारी जमात में कुछ लोगों के चेहरे पे पर्दा पड़ा तो कहने लगे अरे ये भी ठीक वो भी ठीक, ये भी मामला ठीक वो भी मामला ठीक, तो उन लोगों के चेहरे से सुलह कुल्लियत का पर्दा जिस जात ने उठाया उसे ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान कहते हैं। याद
रखिएगा। बहुत पहले मैं एक शेर पढ़ा करता था और सुना करता था। सरकार मुफ्ती आलम इस्लाम ने लिखा, और जमाने को दरसे वफा दिया, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी वाला मदीने से। अल्लाह अकबर, मैं सोचने लगा इंसान मदीने में जाता है, मगर ये कौन सी बला है जिसे मुफ्ती आज़म हिंद मदीने से निकालने की दुआ कर रहे हैं। उस वक्त तो बात इतनी समझ में बहुत सारे लोगों को नहीं आती होगी, आप टेंशन में आ जाएंगे, मगर अब जाकर अरब की सरजमी पर देखिए, आपको मामला समझ में आ जाएगा। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की निगाहें देख रही थी कि ये लाल टोपी और ये लाल रुमाल वाले जो दिन रात मदीने में कभी सलाम के खिलाफ, कभी मिलाद के खिलाफ, कभी फातिहे के खिलाफ, कभी दुआ के खिलाफ, कभी दुरूद के खिलाफ जो फतवे दे रहे हैं, एक दिन आएगा कि आज इनके सीने में बुग़्ज़े मिश्के मुस्तफा है। एक दिन आएगा इनका ईमान इतना कमजोर हो जाएगा, इनके सामने इस्लामी शरीयत को पामाल किया जाएगा, इनके सामने नाच गाने बाजे का बाजार अरब में गर्म किया जाएगा, इनके सामने शहादत की सरजमी पे शरीयत की धज्जियां उड़ाई जाएगी, मगर इनके पास इतनी औकात नहीं होगी कि एक जुमला हुकूमत के खिलाफ बोल सके। औकात नहीं है, बिल्कुल, और आज है भी नहीं। पूरे अरब की सरजमी को देखिए, वो अरब की सरजमी जिसे सरकार ने गुनाहों से पाक किया, जिस अजीम सरजमी को सरकार ने गुनाहों से पाक किया। सरकार की आमद से पहले अरब की सरजमी पे शराब आम था, जुआ आम था, जना आम था, नाच गाने बाजे आम थे। सरकार ने साहब सब पे पाबंदी लगा दी और इस पाकीज़ा सरजमी को गुनाहों से पाक कर दिया। अल्लाहु अकबर। अरब की सरजमी पर एक वक्त वो भी था जब अरब में कहीं शराब खाने का वजूद नहीं था, कहीं नाचने गाने और बजाने वाली नजर नहीं आती थी, कहीं पर जुआ खाने का वजूद नहीं था, मगर इन जालिमों ने साहब इस वक्त सऊदी अरब की हुकूमत ने यहूदियों की साजिश में आकर आज वहाँ पे फिर से शराब खाने खोल दिए। है किसी की औकात बोले वहाँ पे जुआ खाने खोल दिए, है किसी की औकात बोले अब लड़कियां नकाब पहनने वाली वहाँ डांस सीख रही है किसी की औकात बोले उनके लड़के वहाँ पे बेशर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, है किसी की औकात बोले। तभी तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि अरब के जो लोग थे उनका जो मामला था उन दाढ़ी वाले मौलवियों से हो गया, जिनके यहाँ मिलाद हराम, जिनके यहाँ वलियों का जिक्र हराम, जिनके यहाँ नबी पे सलाम हराम। नतीजा ये निकला वो सिर्फ नमाज तो पढ़ते रहे मगर कभी सरकार का तस्करा नहीं सुना। सरकार की सीरत क्या है, सरकार का इखलाक क्या है, सरकार ने इस्लाम फैलाया कैसे, अबू बकर सिद्दीक का किरदार क्या है, हजरत उमर का किरदार क्या है, हजरत उस्मान गनी का किरदार क्या है। साहब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी पैदाइश का दिन उन्हें याद है, मगर जिस उमर ने मदीने में रहते हुए पूरे आधी दुनिया पे हुकूमत की उस उमर का कारनामा उन्हें याद नहीं है। साहब उन्हें अपनी पार्टियां याद है, मगर जिस अबू बकर सिद्दीक ने सरकार के ज़ाहिरी वसाल के बाद इस्लाम को मजबूत किया उस अबू बकर का कारनामा उन्हें याद नहीं है। जिस उस्मान गनी की वक्फ की हुई जमीन से आज पूरा मदीना पल रहा है, आज उन्हें अपनी प्रॉपर्टी याद है मगर हजरत उस्मान गनी की सखावत और कुर्बानी याद नहीं है। आज साहब उन्हें अपने मामलात याद है मगर जिस मौला अली की शुजाअत ने खैबर को फतह करते हुए इस्लाम का झंडा कुफ्र के सीने पे नस्ब किया, साहब उस मौला अली के कारनामे उन्हें याद नहीं है। जिस इमाम हुसैन ने यजीद जैसे जालिम शख्स को साहब पूरा खानदान उसके मुकाबले में कुर्बान करके उसकी हुकूमत को ज़ाहिरी हुकूमत को निस्तो नाबूद करके इस्लाम के परचम को लहराया और फिर से दिन को जिंदा किया। आज उस इमाम हुसैन की सीरत और किरदार याद नहीं है। जो कौम अपने नबी के सिर की सीरत को भूल जाए, जो कौम नबी के सहाबा के किरदार को भूल जाए, जो कौम सरकार की औलादों की किरदार को भूल जाए, जो कौम अपने बुजुर्गों की तारीख को भूल जाए, जो कौम अपने आलिमों की कुर्बानी को भूल जाए, जो कौम अपने आबा व अजदाद की सही तारीख को भूल जाए, वो कौम सिर्फ मुर्दा ही
सफाए हस्ती से मिटा दी जाती है, अल्लाह 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 मिटा दी जाती है। तभी तो मेरे इमाम ने बरेली शरीफ से कहा, या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, जिंदगी में बदलाव लाना होगा, बुजुर्गों से करीब होइए, उन आलिमों से राब्ता रखिए जो आलिम आपको खुदा के करीब करे, जो आलिम आपको नबी के करीब करे, जो आलिम आपको वली के करीब करे, जो आलिम आपको बुजुर्गों के करीब करते, जो आलिम आपको आपके माँ बाप के करीब करते। वरना समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो बाप के मरने के बाद कब्र में भी जाने को शिर्क, उसकी कब्र पे भी जाने को शिर्क समझते हैं, उनके लिए दुआएं बख्शिश करने को भी शिर्क समझते हैं। इसलिए साहब ज़हन को बदलना होगा, अपने मिजाज को बदलना होगा। इंशाअल्लाह ये सारे दलाइल आपको सुनने और देखने को मिलेंगे। बड़ा पुरफितन दौर है, बड़ा पुरआशोब माहौल है। आज कुछ लोग कहते हैं मौलाना जलसों की क्या जरूरत है, मैं कहता हूँ ठीक है, जलसों को बंद कर दिया जाए तो गजलिया मुशायरों की क्या जरूरत है। आपका तो कभी मैंने कमेंट नहीं सुना कि गजलिया मुशायरों को बंद कर दिया जाए। आपने कभी कहा कि शादी ब्याह में इतने खुराफात हो रहे हैं, सरकार की सिर्फ एक सुन्नत है, क्या निकाह आका की सुन्नत है, इजाजत कबूल आका की सुन्नत है, मेहंदी के रस्म के नाम पे करोड़ लाखों खर्च करना ये किसका तरीका है। हल्दी के रस्म के नाम पे पूरा घर पीला पीला हो जाना और साहब लाखों खर्च करना ये किसका तरीका है। शादी के नाम पे नाच गाने की महफिलें सजाना ये किसका तरीका है। पूरा खानदान बुला करके ऐशो मस्ती और रंगो सरूर की महफिल सजाना, आपकी जबान तो वहां नहीं खुलती, इसलिए कि भाई नाराज हो जाएगा, भतीजा नाराज हो जाएगा, चचा नाराज हो जाएगा। मगर बेचारा मदरसे का मौलवी साहब अगर आपके पास किसी जलसे के चंदा के लिए या कोई जलसा कराने वाला बेचारा नौजवान आपके पास चला जाए तो गोले बम बारूद से फतवे दागते हो, इससे क्या फायदा है, इससे क्या फायदा है। जिसकी अपने घर में नहीं चल पाती उसकी सारी जगह चलती है। याद रखिएगा, खैर में भलाई के काम में नेकियों के कामों में फजूल खर्ची नहीं है और फजूल खर्ची में भलाई नहीं है। इसलिए जहाँ फजूल खर्ची है, जहाँ खुराफात है, आज हाफिज शाह आजम साहब कई सालों से साहब ही नहीं जबकि इसका बुनियाद हुआ, पहला जलसा था अल्लामा मुफ्ती आफाक साहब किबला मुजद्दिदी अलैहि रहमा व रिजवान तशरीफ लाए, फकीर भी आया, पहला जलसा हुआ, मस्जिद चंदा किया गया, साहब लोगों को दीन की बातें बताई गई, आप सबका ताउन हुआ, बुनियाद रखी गई। आप बताइए पहले जलसे में बुनियाद रखी गई, फिर हर साल जलसा होता रहा, मदरसा बढ़ता रहा, मदरसा तरक्की करता रहा। फिर वो दिन आया कि पहली बार इस बच्चे से मदरसे से पढ़कर बच्चे फारिग हुए और उन्हें हाफिज कुरान बनाया गया। फिर हर साल बच्चे हाफिज कुरान बनने लगे। आप बताएं साहब ये उस जलसे का ही नतीजा था जिस जलसे में बुनियाद रखी गई और वहां से इस इदारे को खड़ा किया गया, लोगों के ज़हन में बातें डाली गई, लोगों के ज़हन में बातें बैठाई गई। ये नहीं कहता कि साहब याद रखिए, हाँ आप महंगे जलसे मत कराइए, आप अपनी हैसियत के मुताबिक जलसे कराइए। ऐसे भी आज का ये जलसा बहुत बड़ा महंगा जलसा नहीं है, वाह 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 वाह, याद रखिएगा ये बहुत महंगा जलसा नहीं है। जो इस सीजन का जितने जलसे मैंने पढ़े उसका सबसे कम बजट का ये जलसा है, इसलिए कि इसमें तो सारे अपने लोग ही मदऊ है। सिर्फ हजरत अल्लामा फारूक खान रिजवी साहब को बाहर से बुलाया गया है, इसलिए कि उनकी जरूरत है। और जब जरूरत आपको पड़ती है ईमानदारी से बताइए, जिस्म बीमार हो फहीम भाई से पूछिएगा, देखिए ना तबीयत खराब है, कोई अच्छा डॉक्टर बताइए, कहेंगे हाँ गोरखपुर में बहुत अच्छा डॉक्टर है, फी कितना लगता है, हाँ मौलाना साहब थोड़ा महंगा तो है, कहा जाने दीजिए प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर महंगा है मगर इलाज तो हो जाएगा, बहुत महंगा है मगर इलाज तो हो जाएगा। हाँ 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 अरे बिल्कुल इलाज वहीं अच्छे लोगों का होता है, मालूम है ना उत्तर प्रदेश के जितने बड़े नेता हैं सबका इलाज वही डॉक्टर करता है, बड़ा VIP डॉक्टर है, अच्छे अच्छे मरीज अच्छे हो गए, बड़े बड़े मरीज अच्छे हो गए। कहा ठीक है 5000 जाकर फी दिया, 1 घंटा नंबर में लगा। सुल्तान रजा पूछना चाहता है जब जिस्म बीमार हो जाए तो महंगा डॉक्टर चलेगा
जब अकीदा बीमार हो जाए, ईमान में कमजोरी आ जाए, जब समाज बीमार हो जाए, माशरा बीमार हो जाए, तो फिर साहब बड़ा आलिम क्यों नहीं चलेगा? वाह वाह है ना? वाह वाह हैं? बड़ा आलिम क्यों नहीं चलेगा? अच्छा आलिम क्यों नहीं चलेगा? आने जाने में अगर उसके लंबे खर्च हो गए तो क्या हुआ? कम से कम आएगा तो कम से कम जो मामलात हैं वो तो ठीक हो जाएंगे, कम से कम जो सुलगते हुए मसाइल हैं वो तो ठीक हो जाएंगे। साहब मसाइल को ठीक करने की जरूरत है ना? एक बात मैं बता देता हूँ, जिंदगी में खुश रहने की आदत डालिए, अपने दिमाग को पॉजिटिव रखिए, हमेशा पॉजिटिव। आज इस वक्त मार्केट में सबसे ज्यादा जो दवाइयाँ बिक रही हैं, है ना, तो डॉक्टर इम्तियाज सरमद साहब कहेंगे डिप्रेशन की दवाइयाँ बिक रही हैं। बच्चा बच्चा डिप्रेशन में, मर्द औरत डिप्रेशन में, बीवियां डिप्रेशन में, बच्चे डिप्रेशन में, बेटियां डिप्रेशन में। अब तो भाई छोटे बच्चे कहते हैं रात में रुकिए ना, नींद नहीं आ रही, आप सो जाइए, हम बाद में सो लेंगे। जानते इसकी वजह क्या है? पहले उम्र 30 की थी तो अक्ल भी 30 वाली थी, अब उम्र 15 की है मगर अक्ल 30 वाली आ गई है। जाहिर सी बात है, इसलिए कि किताबें 30 वाली पढ़ रहा है, सामान 30 वाली चला रहा है, मोबाइल 30 वाली इस्तेमाल कर रहा है। जाहिर सी बात है, जैसी चीज का सामना पड़ेगा अनुभव तो वैसा ही होगा। ये और बात है कि हुकूमत कहती है कि बच्चा 22 साल के बाद बालिग हो रहा है, मगर इस्लाम कहता है बच्ची 9 साल और लड़का 12 से 14 साल में ही बालिग हो जाता है। ये और बात है, अल्लाह जो कहे हम उसे मानेंगे, मगर ये तो आप है मियाँ, आप जब चाहिए बालिग कर दीजिए और जब चाहिए नाबालिग कर दीजिए, जिसका नतीजा ये हो रहा है कॉलेज के पीछे लाशें, स्कूल के पीछे लाशें, हॉस्टल के अंदर आत्महत्या, हॉस्टल के बाहर आत्महत्या, जगह जगह लाशों का अंबार भी लगा हुआ है। उसकी वजह यही है, हम फितरत से बगावत करके काम कर रहे हैं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग का जो मामला है साहब, वो मामला आपकी निगाहों से पोशीदा नहीं है। हर नौजवान डिप्रेशन का शिकार है। मैंने एक रोज पता लगाया यार क्या वजह है नौजवान डिप्रेशन में चले गए। बहुत अच्छा खासा था, बहुत बड़ा शहर का बिजनेसमैन था, इसको क्या हो गया कि डिप्रेशन में चला गया? पता चला हिसाब किताब का इतना बड़ा बोझ पड़ा कि अब वो डिप्रेशन में चला गया। अब साहब इतना बोझ, इस्लाम कहता है अपने हिसाब किताब को समेटते रहो। अब जाहिर सी बात है, रात के 12 बज गए और डिप्रेशन में बैठकर हिसाब में लगा है, इतना बड़ा टेंशन है, सबको से हिसाब देना है, सारा काम है, अपने साथी को फोन लगाता है, सुनो 12 बज गए हैं, टेंशन से सर फटा जा रहा है, नींद नहीं आ रही है, क्या करूं? तो उससे भी बड़ा बिजनेसमैन जो दिल्ली में बैठता है वो उससे कहता अपने पार्टनर से, अरे छोड़ माज़ल्ला, हमें नींद नहीं आती है तो हम शराब पी लेते हैं, तू भी पी ले। सुनिए हजरत, बेशक बात हकीकत यही है। अब उसने वो पीकर दिल्ली में व्यापारी सो रहा है, सिवान का भी व्यापारी पी करके सो रहा है, इसलिए ताकि रात को कोई डिस्टर्ब नहीं हो, जब जब सोऊं कोई टेंशन नहीं आए। नतीजा ये निकला, अच्छा खासा नौजवान था मगर डिप्रेशन में आ गया, शराबी बन गया। साहब बड़े बड़े पढ़ने वाले लड़के, 24 घंटा में 20 घंटा पढ़ने वाले लड़के, अब साहब उनकी नींद खत्म हो गई। इन साल हम क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इन साल हमारा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। किसी से कहा यार नींद खत्म हो गई, कहा थोड़ी सी नशा कर लेना नींद आ जाएगी। अब नतीजा ये निकला, नौजवान चरस अफीम गांजे का आदी हो गया, कोई शराब का आदी हो गया, कोई जना का आदी हो गया, कोई जुआ का आदी हो गया, कोई साहब नाच गाने बाजे का आदी हो गया। यानी हमने फितरत के खिलाफ काम किया। शराब हराम मगर उसके करीब चले गए, जुआ हराम मगर उसके करीब चले गए, जना हराम मगर उसके करीब चले गए, सूद हराम मगर उसके करीब चले गए, नाच गाना बाजा हराम मगर उसके करीब चले गए। किस लिए? हमारे आत्मा को शांति मिले, दिल को सुकून मिले। मगर ऐ मेरी कौम के लोगों याद रखना, आत्मा को शांति वहाँ नहीं है, दिल को सुकून वहाँ नहीं है। ऐ कुरान तू बता दिल को सुकून कहाँ है? कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिल को सुकून न शराब खाने में है, न मैं खाने में है, न जुआ खाने में है, न नाच गाने बाजे में है, दिल को सुकून खुदा की याद में है। किसकी
याद में है? पूरा मजमा हाथ उठा कर बोलिए किसकी याद में है? खुदा की याद में। अब साहब याद रखिएगा, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मस्जिद में सुकून है, मदरसे में सुकून है, खानकाह में सुकून है, बल्कि हम मस्जिद का जिक्र इसलिए करते हैं कि मस्जिद में खुदा की याद है, मदरसे में अल्लाह व रसूल की याद है, खानकाहों में खुदा की याद है। बल्कि कुरान ने फार्मूला बता दिया, जब दिमाग टेंशन में आए खुदा की याद में लग जाओ, जब दिमाग टेंशन में आए अल्लाह को याद करने वाले बन जाओ, जब दिल घबराए खुदा को याद करने वाले बन जाओ। इसलिए याद रखना, जैसे जिस्म के लिए ग़िज़ा जरूरी है, वैसे ही रूह की सलामती के लिए खुदा की याद जरूरी है। अपने घर में खुदा की याद की महफिल सजाइए, और उसका सबसे बेहतर तरीका ये है, खुद भी नमाजी बन जाइए, औलादों को भी नमाजी बना दीजिए, माँ बहनों को भी नमाजी बना दीजिए, खुद भी नमाजी बनिए। रख दो बाबू रख दो। सुनिए, मैं ये अर्ज कर रहा था, आपके पास आप अपने मकान का प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, आप अपनी जिंदगी का प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, 20 साल में ये करना है, 25 साल में ये करना है, हमारा ये मकान हो, मकान में ये हो, ये हो, ये हो। अच्छा ये बताइए, आपको कश्मीर जाने का मौका मिले, आप किसको किसको लेकर जाएंगे? सोचेंगे ना कि कश्मीर जाए तो वादी कश्मीर है, लोग इसकी जन्नत से तशबीह देते हैं, तो अच्छा होता मैं भी जाऊं, बीवी भी साथ होती तो अच्छा था, बच्चे भी साथ होते तो अच्छा था, माँ बाप भी साथ होते तो अच्छा था, भाई बहन भी साथ होते तो अच्छा था, कुछ दोस्त अहबाब भी साथ होते तो अच्छा था। क्यों? इसलिए कि आप कश्मीर जा रहे हैं। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, हर अच्छी जगह पे जब आप जाते हैं सोचते हैं बीवी भी साथ जाए, बच्चे भी साथ जाए, माँ बाप भी साथ जाए, बताओ जन्नत से भी कोई अच्छी जगह है? बोलिए, जन्नत से भी कोई अच्छी जगह है? वहाँ कोई टेंशन नहीं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। जन्नत में कोई टेंशन नहीं है, जन्नत में सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी। क्या आप नहीं चाहते हैं आपकी बीवी जन्नत में जाए? क्या आप नहीं चाहते हैं आपकी माँ जन्नत में जाए? क्या आप नहीं चाहते हैं आपका बाप जन्नत में जाए? क्या आप नहीं चाहते हैं आपकी औलादें जन्नत में जाए? तो कम से कम घर वालों को बैठाइए और बोलिए, ए मेरी शरीके हयात, क्या ही अच्छा हो तू भी जन्नत में, मैं भी जन्नत में। ऐ मेरी औलादों, क्या ही अच्छा होता मैं भी जन्नत में, तुम सब भी जन्नत में। मेरे वालिदैन, क्या ही अच्छा होता मैं भी जन्नत में, मेरे माँ बाप भी जन्नत में। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इदारा यही काम तो करता है। कभी माँ के नाम पर आपका कोई काम करा दिया, कभी बाप के नाम पर कोई काम करा दिया, बच्चों को नमाजी बनाने का काम, समाज को रोजादार बनाने का काम, लोगों को अच्छाई की तबलीग। इसलिए याद रखिए, लोग कहते हैं मसाजिद की हिफाजत कैसे होगी? आप साजिद बन जाइए, मसाजिद की हिफाजत होने लगेगी। आप साहब, आप इन मदारिस को मजबूत कीजिए, मदारिस होंगे तो मसाजिद की हिफाजत होगी, मदारिस होंगे तो उलमा पैदा होंगे, और जब उलमा होंगे तो दीन की तबलीग होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये काम हाफिज आजम साहब बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट हर साल आपको देखने को मिलता है। इसलिए मेरी गुजारिश है, इस इदारे से जुड़े रहिए। सदका जारिया के तौर पर इस इदारे का कोई काम हो, कभी अपनी माँ के नाम पर, कभी अपने वालिद के नाम पर, कभी बीवी बच्चों के नाम पर, लेकिन एक बात याद रखें, जिंदगी में जन्नत में जाने का फार्मूला करते रहे और साहब अमल करते रहे, खुद भी अमल करे, बीवी बच्चों को भी तलकीन करे, और जहां रहे टेंशन में कहीं न रहे। सैयदा दाई हलीमा को बहुत टेंशन था, मक्के में तशरीफ ले आई तो सारे अमीर बच्चे चले गए और टेंशन बढ़ गया। अब करूं तो क्या करूं, ऊँटनी भी कमजोर है, सीने में दूध भी नहीं है, एक ही बच्चा है, पेट भी नहीं भरता है। पता चला सैयदा दाई हलीमा के घर पहुंची, टेंशन बहुत है, सारे अमीर बच्चे चले गए हैं। अब जो बच्चा हमें मिलने वाला है, अल्लाह अकबर, इनके वालिद का साया सर पर नहीं है, मगर दाई हलीमा को क्या पता था ये बच्चा गोद में पलने नहीं, ये तो जमाने को पालने आया है। अल्लाह अकबर। जब कहीं सरकार की बारगाह में कहती है मैं तो बहुत टेंशन में थी, मगर जब मैं आका को देखने गई तो देखती रह गई, और आका ने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। कि आका ने देखकर
مسکرا دیا. بس یہ میری آخری بات. آقا نے دیکھ کر مسکرا دیا. جو ہی آقا نے مسکرایا, سیدہ حلیمہ کہتی ہیں میری دنیا بدل گئی, میری دنیا بدل گئی. آقا نے جب مسکرا کر دیکھ دیا نا, اسی دن میرے سارے غم ختم ہو گئے. یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کسا ہوئے کے گلستہ بنا دیا. اللہ اکبر. اب آپ ذرا سا سوچے, سینے پہ ہاتھ رکھ کے نبی نے مسکرایا, سیدہ دائی حلیمہ کا سارا غم ختم. کہتی ہیں اس کے بعد کبھی زندگی میں غریبی نہیں آئی, اس کے بعد کبھی میں فاقے نہیں سوئی, اس کے بعد کبھی گھر میں صاحب مصیبت نہیں آئی. ایسا ہوا نبی نے میری گود میں قدم رکھا, مسکرایا, میرا سینہ دودھ کا مدینہ بن گیا. میں بھی تندرست ہو گئی, اٹھنی بھی تندرست ہو گئی, اس کے تھن دودھ سے بڑھ گئے. میرا بیٹا تندرست ہو گیا, میرے شوہر کا پیٹ بھر گیا. گھر گئی تو گھر خوشحال ہو گیا, محلے میں گئی تو محلہ خوشحال ہو گیا, قبیلے میں قدم رکھا تو قبیلہ خوشحال ہو گیا. یعنی مسکرا کر کسی کو دیکھنا اور مسکرا کر غم زدوں سے ملنا, یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے. اس لیے آپ کہیں بھی رہے ایک دوسرے سے مسکرا کر کے ملے. قرآن نے اس کا ذکر یوں کیا, الشداء علی الکفار والرحماء بینہم, یہ کافروں کے لیے سخت ہے مگر آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحم دل ہے. اس لیے رحم دلی کا مظاہرہ کیجئے, آپس میں ایک دوسرے سے مسکرا کر کے ملیے. انسان جب چہرہ خرگوش کی طرح بنا کر اور چہرہ لٹکا ہوا لے کر گھر میں داخل ہوتا ہے نا, بوڑھی ماں انتظار کرتی ہے, بیٹا آئے گا تو کچھ کہوں گی, مگر بیٹے کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر بوڑھی ماں مایوس ہو جاتی ہے. موڈ اچھا ہوگا تو کوئی بات کہوں گی. باپ کا باپ نے دیکھا بیٹے کا چہرہ لٹکا ہوا ہے, باپ اپنے دل کی بات دل میں رکھ لیتا ہے. بیوی دیکھتی ہے شوہر کا چہرہ لٹکا ہوا ہے, صاحب شب بیوی اپنے دل کی بات دل میں رکھ لیتی ہے. جب آپ کا موڈ اچھا نہیں ہو اور چہرہ لٹکا ہوا گھر میں لے کر جائیں گے, ماں آپ سے دل کی بات نہیں کہے گی, آپ کا باپ آپ سے دل کی بات نہیں کہے گا, آپ کے بچے آپ سے دل کی بات نہیں کہیں گے. اس لیے جب آپ تجارت سے فارغ ہو, آپ ڈیوٹی سے فارغ ہو, آپ نوکری سے فارغ ہو, آپ سفر سے گھر واپس آئے, سارے غم کو سینے میں دبا کر اور سینے میں دفن کر کے گھر میں داخل ہو تو سلام کرتے ہوئے اور مسکراتا ہوا چہرہ لے کر کے داخل ہو, تاکہ آپ کا بیٹا آپ سے دل کی بات کہہ سکے, آپ کی بیوی آپ سے دل کی بات کہہ سکے, آپ کے بچے آپ سے دل کی بات کہہ سکے. یاد رکھیے گا, دل کو اچھا بنائیے, خود غم برداشت کر کے دوسروں کے خوشی دینا, یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے. اس لیے اس سنت پہ عمل کیجئے. اگر ہم غم کو دبا لیں اور میری ماں ہماری وجہ سے خوش ہو جائے, میرا باپ ہماری وجہ سے خوش ہو جائے, ہماری اولادیں ہماری وجہ سے خوش ہو جائے, ہماری بیویاں ہماری وجہ سے خوش ہو جائے, اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اس لیے آپس میں ایک دوسرے کو خوش رکھنے والا بنیے, خوشیاں بانٹنے والا بنیے. یہی وجہ ہے آج تو صاحب یہ ٹینشن کا دور ہے. شریعت کہتی ہے 3 جگہ جھوٹ بولنے کی رخصت ہے. کتنی جگہ؟ کتنی جگہ؟ 3 جگہ. نمبر 1 میدان جنگ میں ہے نا, تاکہ دشمن مات کھا جائے. نمبر 2 بیوی کو خوش کرنے کے لیے راضی رکھنے. ماشاءاللہ پورا مجمع کھڑے ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت حضرت علامہ فاروق خان رضوی صاحب قبلہ, جشن امام اعظم ابو حنیفہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ہماری جماعت کا عالمی مبلغ حضرت علامہ مولانا فاروق خان رضوی صاحب قبلہ ناگپور مہاراشٹر کی آمد ہے. ماشاءاللہ بہت قریب آپ کے طرف بیٹھ جائیں, اطمینان و سکون سے بس 5 منٹ بیٹھیں اور پھر انشاءاللہ ان قریب سارے معاملات آپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا, دیکھیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت اسلامیہ کی طرف سے رخصت دیکھیں صاحب, رخصت ہے اور صاحب 2 وجہ تو آپ نے جان لیے. تیسری 2 دوستوں کے درمیان اگر نا اتفاقی ہو جائے تو انہیں آپس میں جوڑنے کے لیے شریعت نے جھوٹ
بولنے کی رک سکتی ہے. اب یاد رکھیے لیکن آج حالات اتنے برے ہو گئے, دو بھائی مل جل کر ہے, لوگ نہیں چاہتے مل جل کر رہے. دو بزنس مین کا اچھا پارٹنرشپ ہے, بڑے مل جل کر اپنی تجارت کو آگے بڑھائے ہیں, لوگ نہیں چاہتے کہ مل جل کر کے رکھے. دو عالم ہیں, بڑے اتفاق کے ساتھ صاحب معاشرے میں اصلاح کا کام کر رہے ہیں, مگر لوگ نہیں چاہتے کہ اتفاق قائم رہے. آج حالات اتنے بگڑ گئے, بیٹے کو باپ سے الگ کرا دینا, بھائی کو بھائی سے جدا کرا دینا, بیوی کو شوہر سے الگ کرا دینا, صاحب خاندان میں بٹ میں صاحب کو بھاگ کرا دینا, یہاں تک کہ پیر مرید میں جھگڑا کرا دینا, امام مقتدی میں لفڑا کرا دینا. آج کچھ لوگوں نے سیوا بنا لیا ہے, مگر اسلام کہتا ہے ایسا نہ کرو. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے نبی نے کہا تھا کہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو, تو انہوں نے یہی کہا تھا سرکار معراج کی شب جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی انہی باتوں میں سے ایک بات بتا دیجئے. تو اللہ کے نبی نے کہا ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ رب نے فرمایا محبوب آپ کی امت کا کوئی شخص اگر آپ کی امتی میں کسی دو شخص کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہو, دل ٹوٹ گیا ہو, ان دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو محبت سے جوڑ دے تو میں بلا حساب اسے جنت میں داخل کر دوں گا. مگر آج جوڑنے والوں کی تعداد بالکل نہیں, مگر توڑنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اس لیے توڑنے والا مت بنیے, آپس میں محبت سے جوڑنے والا بنیے. اگر دو دوستوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا نا تو آپ اس کی شکایت نہ کریں کہ وہ تیری شکایت کر رہا تھا, فلاں تیری شکایت کر رہا تھا. ہونا یہ چاہیے اس کے دوست سے ملے خیریت, میرے دوست کے بارے میں کیا خیال ہے, کہے گا یار وہ میرا دوست, نام نہ مت لینا, کہنا کیا بات کر رہے ہو, جب سے تجھ سے جدا ہوا ہے وہ تو صرف تیرا ہی نام لیتا ہے, تیرے ہی چرچے کرتا ہے, تیری تعریف کرتا ہے. اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی, کہنا یقین نہیں تو میرے گھر آ کے ایک کپ چائے پی لو, اسے بلاتا ہو, اب اس سے ملو, اس سے کہو کیا خیال ہے تیرے دوست کے بارے میں, کہے گا اس کا نام مت لینا, کہنا کیا کہہ رہے ہو, وہ تو ہر وقت تیرا ہی نام لیتا ہے, وہ تیری تعریف کر رہا تھا. اچھا ایسی بات, کہا میرے گھر آ جانا, چائے پلاؤ, دونوں کو بلاؤ اور دونوں کو محبت سے ملا دو. یہ بڑا ہی ثواب کا کام ہے, یہ جنت میں جانے کا کام ہے. اس لیے توڑنے والا نہیں بلکہ جوڑنے والا بنیے. مدارس کی اہمیت کو سمجھیے, مدارس سے عالم اور حافظ پیدا ہوتے ہیں, اور جب یہ کسی بستی میں قدم رکھتے ہیں تو آپ کے عقیدے کی اصلاح, ایمان کی اصلاح, اعمال کی اصلاح, آپ کو سچائی اور اچھائی کی باتیں بتاتے ہیں. اس لیے مدارس سے قریب ہوئیے. یہ مت کہیے کہ جنگ سے جلوس سے کیا فائدہ ہوتا ہے, بلکہ یہ سوچئے چلو سال بھر میں ہمیں دین سیکھنے اور سننے کا موقع ملا نہ ملا, کم سے کم جلسے میں آئے تو ہم نے رات بھر دین تو سنا, کچھ تو سیکھنے کا موقع ملا, کم سے کم 2-4-10 لوگ بھی عمل کر لیے تو انشاءاللہ جلسہ کرانے کا مقصد حل ہو جائے گا. مالک مولا کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو مدارس اسلامیہ سے خوب جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. پورا مجمع مل کر پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.